In last class, we just revised the definite integral properties, right? Which you already learned in 12th class. And I think you all revised the last class because the formulas of definite integrations and the properties of definite integrations are very, very important now. Also, we learned an important formula based on gamma function, which was which is integration from 0 to pi by 2 sine raised to the power mx cos raised to the power nx dx is equal to gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 divided by 2 times of gamma m plus n plus 2 by 2. So these all things we revised in the last class, and we discussed about the basic properties of gamma and this formula, which is very important. So I repeat that definite integration properties are very, very important. आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले यू शुड लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज, you should learn all the formulas of definite integration. Okay. Today we will start so-called rectification. Rectification or arc length of the curve. Rectification or arc length of the curve. देखिए इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, कोई भी कर्व आपको गिवन है, चाहे वो कर्व कार्टेशियन फॉर्म में हो, चाहे वो कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, पोलर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आपके सिलेबस में कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म है, पोलर फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म, इंट्रिंसिक फॉर्म, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो कर्व आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो या पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो, उस कर्व का कोई भी फिगर बन रहा हो, वो कर्व कैसा भी हो, उसकी जो आर्क की लेंथ है, मतलब उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, उसके अंदर से मतलब नहीं है हमें, उसकी बाउंड्री की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. This process is called rectification. So definitely we will use a special formula for finding the arc length of any kind of Cartesian curve or parametric curves. So let's start. I think screen is visible to everyone. Could anybody please tell me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this was the properties of definite integration which we have done in last class. Yes, sir. Okay. And this was the important formula based on gamma function. These are the reduction formulas for definite integrations. Right? And this is a Leibniz rule of differentiation under the sign of integration when there is a function of one variable and there is a function of two variables are given. Now the topic is length of plane curve, which is called a rectification.
Okay. So let's read the introduction. Rectification is the process of determining the length of an arc of a plane curve. The equations of the curve are given in Cartesian form, parametric form और polar form. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म सिलेबस में है, पोलर फॉर्म नहीं है. Students are advised to get familiar with the basic concepts of curve tracing in connection with this and the following chapter. तो आपको कुछ जो फंडामेंटल कर्व्स हैं उनको ड्रॉ करना आना चाहिए. You should know how to draw the fundamental curves like circle, ellipse, parabola, hyperbola. ये सब आपको आना चाहिए. So rectification is the process for determining the length of an arc of a plane curve. Guys, keep in mind we are interested only the arc length of the given curve. We are not interested at all in the area or in the volume of the given curve. Right? So they just focus on the arc length of the given curve, or you can say the length of the boundary of the given curve. We just focus. So these are the formulas. इन फॉर्मूलों को हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन उस डेरिवेशन का कोई लॉजिक नहीं है. अगर आप में से कोई बोलेगा तो मैं इसको डिराइव कर दूंगा. देयर इज नो हार्म. कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, अगर कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप की है, तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड वी आर कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स x इज इक्वल टू a टू b. मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और x इज इक्वल टू a से लेके b तक आपको उस कर्व की आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो द फॉर्मूला विल बी s मतलब आर्क लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर dx. मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस है, और फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है. इसका ये कर्व जो है इसकी आर्क लेंथ आपको फाइंड करनी है x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक. ओके, सो यू कैन फाइंड दिस आर्क लेंथ फ्रॉम a टू b बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. फाइन. इफ द कर्व इज गिवन इन द फॉर्म x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला अभी आपने लिखा है इस फॉर्मूले में x और y को इंटरचेंज कर दीजिए. सो इट शुड बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर dy, और जो लिमिट आएगी वो y की हो जाएगी, y की लिमिट c टू d, जो भी लिमिट होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. So this is the formula of arc length of the curve y is equal to fx when it is taken from x is equal to a to x is equal to b, and this is for x is equal to f of y when this arc length is taken from y is equal to c to y is equal to b. Now parametric form, this was the Cartesian form, you can see very easily. Now we just talk about the parametric form. Parametric form में कर्व की इक्वेशन आपको पता ही कैसे होती है. x is equal to some function of t and y is equal to some function of t. Let's say x is equal to f of t and y is equal to g of t, where t is the parameter. थीटा भी हो सकता है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, t, थीटा, उससे कोई मतलब नहीं है. So x is equal to f of t and y is equal to g of t, where t is the parameter, and it's the parametric form of the given equation. And no doubt the parameter is varying from a particular value t1 to t2. Then arc length of this parametric curve from t1 to t2 will be s is equal to integration from t1 to t2
अंडर रूट ऑफ dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर इनटू dt. So guys, these are the formula for evaluating arc length of any kind of Cartesian curve of one variable and parametric form of the curve. Any doubt in the formulas or any doubt in concept? For proceed. Sir, can you give one example? Like I'm not understanding. एक एग्जांपल दे सकते क्वेश्चन तो भी करेंगे बेटा. हो? ठीक. सर आर्क को मतलब क्या है? आर्क का मतलब है आर्क. ये किसने पूछा? सर माफिजुर आलम. हाँ माफिजुर आलम सर. बेटा आर्क का मतलब होता है, आर्क का मतलब नहीं पता आपको? कर्व की तो आप बाउंड्री ऑफ द कर्व. कर्व की जो बाउंड्री होती है ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल. फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए एक ये है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल है. दिस इज रेक्टेंगल. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है. तो इस पूरे रेक्टेंगल की आर्क लेंथ का मतलब है इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है. समझ रहे हैं? ओके सर. So arc length is nothing but the length of the boundary of the given curve. और जिस लिमिट से लेके जिस लिमिट तक हमें फाइंड आउट करना होगा वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में बोल देगा. जैसे इस सर्कल में अगर ये बोले कि आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक की आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है बस, तो आपको सिर्फ इतनी करनी है, बाकी आर्क लेंथ फाइंड आउट नहीं करनी. ये पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला. अगर आपको बोले कि सिर्फ इतनी आर्क लेंथ फाइंड आउट कीजिए, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतनी कीजिए, तो आपको सिर्फ इतनी करनी है, बाकी ये वाली नहीं करनी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर. एक क्वेश्चन करते हैं. एक्चुअली दिस चैप्टर इज वेरी 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 इजी. इसलिए मैंने बोला था आपको बस डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और डेफिनेट इंटीग्रेशन करना आना चाहिए. तो वो बहुत इजी है. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, आपको पता ही है. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन. फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व. लेंथ ऑफ द कर्व का मतलब वही है कि कर्व की लेंथ फाइंड आउट करना या कर्व के आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना. बोथ आर सेम थिंग्स. फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y is equal to x under root x from x is equal to 0 to x is equal to 4/3. So the question is very simple and quite straight. आपको कर्व गिवन है y is equal to x under root x और इस कर्व की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है x is equal to 0 to x is equal to 4/3. मतलब ये है कि अगर इस कर्व को आप ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व तो इनफाइनाइट तक ड्रॉ होगा, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो 0 टू इनफाइनाइट है. आप चेक कर सकते हैं. तो 0 टू इनफाइनाइट में कर्व तो बहुत लंबा ड्रॉ होगा. लेकिन हमें इस कर्व की x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4/3 में जो आर्क लेंथ आ रही है, जो कर्व की लेंथ आ रही है, बस वो फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना. तो आर्क लेंथ और रेक्टिफिकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कर्व की अंडर द सर्टेन लिमिट आर्क लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते. ओके. So the curve is y is equal to x under root x and it is from 0 to 4/3. We have to find out the arc length. तो फॉर्मूले के लिए पहले हमें dy by dx फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये dy by dx आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल से नहीं डायरेक्ट कर लीजिए. एक्चुअली x अंडर रूट x का मतलब है x रेज टू द पावर 3/2. उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2. और 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया. ये आ गया. आर्क लेंथ का फॉर्मूला है
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे है 0 to 4/3 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसका होल स्क्वायर, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। हाँ सही है, सही है, सही है, यस, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्चुअली दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 9/4 एक्स रेज टू द पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल एक्स लीनियर फॉर्म में है, तो 1 प्लस 9/4 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x का जो कोफिशिएंट है 9/4 वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/4। बस अब आपको लिमिट पुट करना है। पहले अपर लिमिट x में पुट करेंगे आप, फिर माइनस लोअर लिमिट आप x में पुट करेंगे। ये कैलकुलेशन तो सबको आता है ना? यस सर। अपर लिमिट माइनस, यस सर। यस, सो द आंसर विल बी 56/27 limits. Any doubt in this question? It's a simple and straight question. Let's move to the next question. Find the length of the arc of the parabola y square is equal to 4x, cut off by its lattice rectum. आपको पता होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला होता है, और उसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? याद है किसी को? याद दिला देता हूँ मैं। ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये हमारा फोकस होता है a,0, और यहाँ से एक लाइन पास होती है, इसे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। देखिए, कैन यू सी द फिगर? दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज फोकस a,0, और यहाँ से एक बिल्कुल सीधी लाइन पास होती है जो x एक्सिस पे 90 डिग्री ड्रॉ करती है, क्योंकि A0 से पास होने वाली काफ़ी लाइंस होती है जिन्हें फोकल कॉर्ड बोला जाता है, लेकिन ऐसा फोकल कॉर्ड जो x एक्सिस में 90 डिग्री सबमिट करता है उसे लेटेस्ट रेक्टम बोला जाता है। ओके, क्योंकि A0 से पास होने वाली तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है। देखो, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली ऐसे वाली भी हो सकती है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन which are passing through the focus. All that lines are called focal chord. Focal chord. हाँ, focal chord. यस। focal well, लेकिन वो वाला फोकल कोड जो 90 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस पे उसे कहा जाता है लेटेस्ट रेक्टम। सो P डैश, तो जो P डैश है ये है लेटेस्ट रेक्टम। इज इट क्लियर? यस सर। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये P का कोऑर्डिनेट a,2a कैसे आया, और P डैश का कोऑर्डिनेट जो होगा वो a,-2a होगा। कोई बताएगा मुझे कैसे होगा? सर ऑपोजिटली मिरर इमेज है ना एक दूसरे की। नहीं, पहले ये बताइए ना, मिरर इमेज की बात करते हैं। P कोऑर्डिनेट a,2a कैसे होगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछे ना आप सब लोगों से। सर एक्स और वाई निर्देशांक। आदर्श चौधरी, कैन यू हियर मी? यस सर। बताइए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। इक्वेशन से
नहीं, y इक्वल टू मैंने आदर्श चौधरी से y पूछा, जितेंद्र प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। यस एक्स और आदर्श। वाई निर्देशांक है ये। हाँ कैसे आएगी यही तो पूछ रहा टू हूँ, है। कैसे आएगी? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, a कॉमा 2a कोऑर्डिनेट कैसे आएगी? अर्गित रे, अर्गित रे, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस, Yes, sir. बताइए। सिंपल क्वेश्चन है यार, वेरी गुड। जितेंद्र चलिए बताइए। कौन बताएगा, किसी को आता है? Sir, can you repeat the question once? The question is quite simple. Can you see the figure? Yes, sir. I am asking how this point P comes. सर सॉरी ओके छोड़िए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सीधी सी बात है, फोकस का कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो a होगा ही होगा। म्यूट कीजिए अपने आप को, क्या म्यूट कीजिए, अरित म्यूट कीजिए, क्योंकि ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो x में तो कोई वेरिएशन होगा ही नहीं, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। और x कोऑर्डिनेट a जो है, एक्चुअली ये जो p पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर है, और ये जो p डैश है ये भी कर्व के ऊपर है। तो x इज इक्वल टू a जो है वो इस कर्व में आप सेटिस्फाई करवा दीजिए और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो x का वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन में रखा, तो आपका बन गया ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2a। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस 2a आ गया। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, इसलिए y नेगेटिव आ गया। इज इट क्लियर? जी सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय लेटर सेक्टर। मतलब हमें जो आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है वो ये फाइंड आउट करनी है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला। क्योंकि ये लेटर सेक्टर से यहीं से कट ऑफ हो रहा है, तो हमें p o p डैश फाइंड आउट करनी है। अब सीधी सी बात है, अगर आप ये o कोऑर्डिनेट 0 0 है बिकॉज इट्स ए ओरिजिन, अगर आप इस आर्क लेंथ को फाइंड आउट कर लें और उसका डबल कर लें तो पी ओ पी डैश आर्क लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी सर। तो ओपी आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए या ओपी डैश फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है, और उसको डबल कर दीजिए तो पी ओ पी डैश फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी एक आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, पी ओ पी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ओपी। अब जैसे आप OP फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब आपकी ये चॉइस है कि आप x में वेरिएशन चाहते हैं या y में वेरिएशन चाहते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर आप x में वेरिएशन चाहते हैं तो लिमिट x की होगी 0 टू a, दिख रहा होगा आपको इस आर्क के ऊपर x की लिमिट होगी 0 टू a। यस सर। और अगर आप y में वेरिएशन चाहते हैं तो y की लिमिट होगी माइनस 2 y की लिमिट 0 टू 2। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में वेरिएशन चाहते हैं। क्योंकि अभी मैंने आर्क लेंथ का आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, वो मैंने y स्क्वायर y इज इक्वल टू एफ एक्स के हिसाब से भी बताया था और x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के हिसाब से बताया था।
अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के हिसाब से लेते हैं तो x की लिमिट पुट कर दीजिए। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तब आप x की लिमिट पुट कर दीजिए, और अगर आप x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप y की लिमिट पुट कर दीजिए। तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ओके, तो देखिए ये x के हिसाब से चल रहा है, आप किसी के भी हिसाब से चल सकते हैं, आप OP भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप OP डैश भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको डबल करना है। तो ये देखिए 2 टाइम्स 0 to a अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला लगा दिया इसने, y इज इक्वल टू एफ एक्स के हिसाब से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व है आपका, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये इस डी वाई बाई डी एक्स से होल स्क्वायर को पुट कर दिया यहाँ पे, ये बन गया। वाई स्क्वायर का वैल्यू वापस 4x पुट कर दिया, फाइनली x में ये बन गया। बाहर 2 टाइम्स चलता रहेगा बिकॉज वी आर इवेल्युएटिंग द लेंथ ऑफ OP ओनली एंड इट we will double so that we can find the whole length P of P dash. So 2 times of 0 to a under root of 1 plus a upon x dx, और ये एल्शियम लेके ये आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को करना आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कोई बताएगा मुझे? सर इसका 1 प्लस 2 times of 0 to a under root a plus x upon under root x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर रूट एक्स को जेड और वाई और सर टी में कन्वर्ट कर लूँगा, मतलब एक्स रूट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर ऐसे करूँगा। तो इससे बेटर ऑप्शन है रूट ए प्लस एक्स को टी स्क्वायर एज्यूम कर लो, ओके, बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको बोला था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूलेज, सारी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। ये ऑलरेडी आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसमें मैं अलग से टाइम नहीं दूंगा आपको। सो यू शुड नो ईच एंड एवरी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल एज्यूम करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है, सबको पता है ना? यस सर। तो लिमिट भी चेंज करना याद रखना। ये देखिए जब इसने a प्लस एक्स को टी स्क्वायर एज्यूम किया तो ये लिमिट चेंज हुई है, देखो आप। तो आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, दिस इज नॉट माई पार्ट। फाइनली ये बना, इसका फॉर्मूला आपको सबको आता होगा, इंटीग्रेशन यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आता है? मैं लिख देता हूँ अगर नहीं आता है तो। अभी तो लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आना चाहिए, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट ये फॉर्मूला याद आया? ये होता है what you have to do. Guys, have you got it? Guys, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है?
गाइस कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ वो एक्चुअली पावर कट हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। एनीवेज जस्ट अ सेकंड। Could anybody please tell me? Can you see the screen? Everybody? Yes, sir. Okay. So this was the question we were doing. So the calculation is your part. You can do yourself. ठीक है? और डेफिनेट इंटीग्रेशन की हर एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, आपने लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Okay. So you just put the formula, put the upper limit minus put the lower limit and get the answer. Any doubt in this question? No, sir. I am again saying, just revised all the formulas of integration and all the fundamental properties of definite integration. Okay? If you need any help, you can contact me anytime, there is no issue. Okay, shall we move to next question? Yes, sir. Yes, sir. Find the whole length of the asteroid. याद है मैंने आपको ये एस्ट्रॉइड बताया था, इसकी इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में, याद है लास्ट क्लास में? x raised to the power 2 by 3 plus y raised to the power 2 by 3 is equal to a raised to the power 2 by 3. बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. This is called asteroid. तो ये स्टैंडर्ड कर्व आपको आना चाहिए। So x raised to the power 2 by 3 plus y raised to the power 2 by 3 is equal to a raised to the power 2 by 3 is the equation of asteroid. और एस्ट्रॉइड ऐसे बनता है, देखो बहुत ही सिंपल फिगर है, बहुत सिमेट्रिकल होता है, कोई इश्यूज नहीं। इट्स जस्ट लाइक ए काइट। ये कोऑर्डिनेट a, 0 होता है, ये कोऑर्डिनेट 0, a होता है, ये कोऑर्डिनेट -a, 0 होता है, ये कोऑर्डिनेट 0, so it's just like a kite and it's a symmetrical figure. This is called asteroid. और मैंने आपको इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म भी बताई, x is equal to a cos cube t, y is equal to a sin cube t. याद आया? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। देखिए, या तो ये क्वेश्चन आप कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। आप इस कर्व को y is equal to fx की फॉर्म में लिख लीजिए, या x is equal to f of y की फॉर्म में लिख लीजिए और आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। अच्छा एक बात और, हमें इस एस्ट्रॉइड की होल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम ए बी लेंथ फाइंड आउट करके उसे 4 टाइम्स कर देंगे, या बी सी लेंथ फाइंड आउट करके उसे 4 टाइम्स कर देंगे, या सी डी लेंथ फाइंड आउट करके उसे 4 टाइम्स कर देंगे, या डी ए लेंथ फाइंड आउट करके उसे 4 टाइम्स कर देंगे। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी एक लेंथ आप पकड़ लीजिए जो आपको फाइंड आउट करनी है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो जैसे मान लो ए बी लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे 4 टाइम्स कर देंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क बना दिया इस लेंथ को, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेथड है, आप y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इस कर्व को ले लीजिए, जो कि बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
कार्टेशियन फॉर्म वाले आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा दीजिए और x की लिमिट ले लीजिए a से लेकर 0 तक। समझ में आया? यस सर। a की लिमिट ले वाई वाले लीजिए में a से लेकर 0 तक। ए से a से 0 आएगा, देखो ना आप आर्क लेंथ a भी देखो, ठीक है? यस सर। ओके, तो आप फिर अगर x वाला लेंगे तो 0 से a लेंगे ना, मतलब जैसे y इक्वल टू y के टर्म्स में इक्वेशन लेंगे। बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इक्वेशन ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की लिमिट x में ही होगी या नहीं होगी? यस सर। तो x में तो लिमिट ली है मैंने, a टू भी देखो तो सही ध्यान से बेटा। अपवर्ड होगी या डाउन? कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने a टू भी ले लिया, आप b टू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, ठीक। ठीक है, तो a टू b लेंगे तो a टू 0 हो गई और फिर उसको 4 टाइम्स कर देना तो आपकी होल आर्क लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ये समझ में आया नहीं आया सबको? सर 0 to a और a to 0 दोनों का सेम ही आएगा? बेटा आर्क लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। जी सर, जी सर। ठीक है, आप कभी ये थोड़ी ना बोलते हो उल्टा चलते हो तो कि मैं -10 किलोमीटर चल के आ गया, जी सर। है ना? आप उल्टा चलो सीधा चलो बोलोगे तो यही 10 किलोमीटर चल के आ गया। यस सर। सो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयर इज नो इशू। तो ये चीज पहला मेथड समझ में आया आपको? यस सर। सेकेंड आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, फंक्शन को x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में ले लीजिए, ये भी बहुत इजी है, और y का लिमिट पुट कर दीजिए। y का लिमिट अगर मैं कैपिटल A टू कैपिटल B ले रहा हूँ तो 0 टू a हो गया, ये y का Yes, sir. 0 टू a, और फिर उसको 4 टाइम्स कर देना, ये दूसरा मेथड हो गया। तो ये दो मेथड तो हुए कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग जिसे आप कर सकते हैं। सिंस दिस क्वेश्चन हैज ए पैरामेट्रिक फॉर्म एज वेल, तो आप इसे पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से भी कर सकते हैं, पैरामेट्रिक वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। तो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अभी इसको यही छोड़ता हूँ, पहले मैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाला आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये देखिए पैरामेट्रिक वाले फॉर्मूले में सबसे पहले पैरामीटर के लिमिट की रिक्वायरमेंट है, मतलब लिमिट शुड बी इन पैरामीटर्स ओनली t1 टू t2, और dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। तो dx अपॉन dt तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आ जाएगी, dy अपॉन dt y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आ जाएगी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लिमिट विच इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हमें dx अपॉन dt मिल जाएगा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। अब बात आती है लिमिट, क्योंकि लिमिट शुड बी इन t ओनली। तो देखिए जैसे आप ले रहे हैं आर्क लेंथ ए बी, आपने ये चूज किया आर्क लेंथ ए बी और इसे 4 टाइम्स करने का सोच रहे हैं, तो इस आर्क लेंथ ए बी में x का वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रहा है? x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? अरे अभी बताया तो सही, a से 0 A to 0, है ना, और y का वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रहा है? 0 to A। तो कोई भी एक वेरिएशन आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग और उसको इस पैरामीट्रिक फॉर्म में पुट कर दीजिए, आपकी चॉइस है वो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम। जैसे मान लो मैं x में वेरिएशन ले रहा हूँ, तो x का वैल्यू मैंने अगर a पुट किया, x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है? a टू 0। तो अगर मैंने x का वैल्यू a पुट किया, यहाँ a पुट किया तो a से कैंसिल हो गया, cos क्यूब t का वैल्यू 1 हो गया, और प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग t का वैल्यू 0 हो गया, बिकॉज cos क्यूब t इज 1, देन cos t इज 1 एंड cos t इज 1, दैट इज t इज इक्वल टू 0।
इज इट क्लियर? जी सर। हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब x का वैल्यू, दूसरा वैल्यू 0 लीजिए, x का वैल्यू 0 पुट किया, ये a 0 की तरफ शिफ्ट हो गया, cos क्यूब t 0 हो गया, मतलब cos t 0 हो गया, मतलब t पाई बाई 2 हो गया। तो x का वैल्यू जो a टू 0 था वो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बन गया, t का वैल्यू 0 टू पाई बाई 2। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आप चाहें तो y के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। आप y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको t का वैल्यू 0 मिलेगा, आप y का वैल्यू a पुट करेंगे तो आपको t का वैल्यू पाई बाई 2 मिलेगा। तो आप x में वेरिएशन ले लीजिए या y में वेरिएशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुद्दा यह है कि हमें x या y में वेरिएशन के अकॉर्डिंग t में वेरिएशन को फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? यस सर। तो पैरामीटर कहां से कहां वेरी कर रहा है? अगर आप ये आर्क लेंथ ले रहे हैं तो a टू b, t is equal to 0 to t is equal to pi by 2. Okay? So the total arc length will be 4 times of arc length AB. 4 times of arc length AB. That is 4 times of integration t1 to t2, that is 0 to pi by 2, under root dx by dt whole square plus dy by dt whole square dt. dx by dt का वैल्यू ये हो गया, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। dy by dt का वैल्यू ये हो गया। dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर को अलग से कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन कर लिया। sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t का वैल्यू 1 हो गया, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर का वैल्यू 3a cos t sin t हो गया। फॉर्मूले में पुट कर दिया तो होल आर्क लेंथ विल बी 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 3a sin t cos t। देखिए ये 3a कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए। आप चाहें तो इसमें वो गामा वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ये 3a तो बाहर ले लीजिए, तो बाहर हो गया 12a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इट्स sin t cos t dt। तो आप उसमें गामा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? लगा सकते हाँ बिल्कुल। सर। m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू भी 1 है, हैं n का। यस और गामा को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया। या यस ये फंक्शन तो बहुत छोटा है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 sin t cos के अंदर बन के sin 2t हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं ना? यस सर। ये तो फिर Yes, आपको, sir. ये तो आपको आता ही है। मैं आपको गामा से Yes, करके sir. बताता हूँ, ये तो आता ही, गामा से करके बता देता हूँ आपको। सो 12a, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ जल्दी जल्दी। गामा m प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1। वन गामा n प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 3 बाई 2 दैट इज 1 प्लस 1 2 3 by 2 प्लस 2 4 बाई 2 इज 2। yes sir 4 by 2 ये 2 से ये 2 6 टाइम कैंसिल हो गया। गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, और गामा 2 का वैल्यू फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब 1 होता है। इसका मतलब ओवरऑल आंसर आ गया 6a। एनी डाउट? नो सर, हाँ, बट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर आपने तो वो इक्वेशन दिया x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के बजाय आपने वो पिक्चर ड्रॉ कर लिया, तो मुझे कैसे पता चल जाएगा कि ये पिक्चर कैसे ड्रॉ करूँगा? यस यस यस, एक्चुअली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स आपको याद रखते हैं, जैसे सर्कल कैसे बनाया जाता है, एलिप्स कैसे बनाया जाता है, पैराबोला कैसे बनाया जाता है, हाइपरबोला कैसे बनाया जाता है, और एस्ट्रॉइड कैसे बनाया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कर्व है, इन्हीं के आसपास हमारे क्वेश्चंस घूमते हैं। आपको ऐसा कोई भी कर्व एग्जामिनेशन में नहीं देगा जो आपसे नहीं बन पाए। समझ पा रहे हैं?
अगर ऐसा कोई कर्व आपको देगा तो वो लिमिट आपको डायरेक्ट दे देगा, आपको कर्व ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इससे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था, ये फर्स्ट वाला, ये देखिए ये कर्व हमें हो सकता है हमसे ड्रॉ ना हो, तो ड्रॉ नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने देखो लिमिट दे दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ सर। ना, तो हमें स्टैंडर्ड कर्व्स बस आने चाहिए, उसके अलावा कोई डिफिकल्ट कर्व आता है तो डेफिनेटली वो लिमिट गिवन होगी, लिमिट आपको देगा। ओके सर ओके सर। यस, तो आंसर इज 6A। एनी डाउट? नो सर। नो सर। So I think our arc length or rectification concept is very clear to everyone. यस सर। And Yes, sir. we will do more questions in next class. If you have any doubt today, you can ask me please. Guys, any doubt? Please ask. No sir. Okay. So thank you very much all of you. Have a good day. Thank you. Thank you थैंक sir. यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।